Good morning, dear student. How are you? I hope you all are well. Today we are going to start our first chapter of science, and the name of the chapter is Natural Resources, Air, Water and Land. Now you can see here I have already stick a chart here. Spheres of the earth, the name of the chart is here. Now some living things and non-living things are included in this chart, as you can see in the picture. Here, observe the figure above and answer the question. Now, based upon this chart, you have to answer some question which is given below here. First one, where do we see the birds? Means, इसमें birds कहाँ दिखाई दे रहे हैं? As you can see in your chart, the birds are flying in the sky. In short, they are flying in the air. This will be your right answer. Second, where is the cow grazing? As you can see in the chart, the cow is grazing on open land. Okay. Third question, locate the trees and road. Where the tree is here, the tree is here. Some trees are here. And locate the road. Where there is a road, the road is shown here. Okay. The fourth question, where does the river come and how does it flow? The river is coming from the hill and it is going down on the land, okay, on the flat surface area. Fifth question is here, where is aeroplane? As you can see here, aeroplane is here, it is flying in the air. And sixth question, where are the fishes seen? The fishes are seen in the water. On what is the sailboat floating? The sailboat is here and it is floating on water with the help of air. Now, one thing you can observe in this picture, something is on the land. Some living things are on air. Some living things are in the water. It means that the living things are mostly found in water, in land and in air. Okay, कि living things कहाँ पे पाए जाते हैं? कुछ living things पानी में पाए जाते हैं, कुछ living things land पे पाए जाते हैं और कुछ living things air में पाए जाते हैं. ठीक है, तो आप इससे कंक्लूड कर सकते हो कि ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है, तो कुछ पार्ट जमीन का है, कुछ पार्ट पानी का है, कुछ पार्ट हवा का है. ठीक है, तो हम हवा को एटमॉस्फेयर डिनोट करते हैं, वाटर के लिए हम हाइड्रोस्फीयर यहाँ पे साइंस में वर्ड यूज करते हैं एंड लैंड के लिए लिथोस्फीयर यूज करते हैं. और ये तीनों मिल करके क्या फॉर्म होता है? बायोस्फीयर. और आप ये भी देख सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे आप यहाँ पे बर्ड्स देख रहे हैं, ठीक है, बर्ड्स कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको? एयर में. फिश कहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं? वाटर में. मतलब और जो एनिमल्स है वो कहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं? लिथोस्फीयर, यानी कि लैंड सरफेस एरिया पे. इट मीन्स दैट मोस्टली द लिविंग थिंग्स आर फाउंड आइदर इन एयर, water or land, and combine the air, water and land form biosphere. For air, the word is denoted by atmosphere. For water, we use word hydrosphere, and for land, we use lithosphere. Okay, so air, water and land are the factors important for the sustaining the living world on the earth and for fulfilling their basic needs. मतलब धरती पे जिंदा रहने के लिए, इस अर्थ पे जिंदा रहने के लिए लिविंग थिंग्स को तीनों चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो एयर हो, चाहे ये वाटर हो और चाहे ये लैंड हो. यही सब चीज़ों से क्या होता है? लिविंग थिंग्स सस्टेन लेते हैं, अपने आप को जिंदा रखते हैं और उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं, जो भी उनके बेसिक जो नीड्स होते हैं, फॉर फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स, ये इनकी बेसिक नीड्स इसी तीनों जगह से पूरी होती है. And they are called natural resources, and that is the reason this three all together is known as natural resources. जो ये land, water और air तीनों को मिला देंगे तो ये क्या कहलाएंगे? natural resources कहलाएंगे. Now, the living things and the part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere
which they occupy are together called biosphere. Just now I told you, if we are going to add or we are going to combine all spheres, whether it is atmosphere, hydrosphere and lithosphere, if we combine all together, so together this will be known as biosphere as I shown in the chart. ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर कहेंगे. नेक्स्ट, द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ. आप यहाँ चार्ट में देख सकते हो कि ये जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है? एक एयर का लेयर होता है जो अर्थ के चारों तरफ क्या होता है? सराउंडेड होता है. ठीक है, एंड दैट इज द रीजन वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एटमॉस्फेयर. इसी एटमॉस्फेयर से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन डिराइव करते हैं. अगर ये ऑक्सीजन नहीं रहे तो आप जानते हो नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉम्प्रोमाइजेस वाटर. वाटर मीन्स व्हाट? योर हाइड्रोस्फीयर. एंड लैंड, लिथोस्फीयर. अगर आप सरफेस एरिया पे आ जाओगे तो सरफेस एरिया पे दो चीजें, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो और चाहे वो लिथोस्फीयर हो, मतलब लैंड सरफेस एरिया हो. ठीक है, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? ये दोनों हमारे फ्लैट सरफेसेस पे पाए जाते हैं. ओके, द सरफेस एरिया हम इसको बोलते हैं. ऑफ दिस द हाइड्रोस्फीयर ऑक्यूपाई अ मच लार्जर पार्ट देन लिथोस्फीयर. आप उसमें भी अगर देख सकते हैं तो आपने पढ़ा भी होगा पहले भी पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लास में, कि पूरे सरफेस एरिया जितना है अर्थ का उस पर 71% क्या है? वाटर है. ठीक है, 71% वाटर कंसिस्ट ऑफ है और रिमेनिंग पार्ट्स क्या है? लैंड है. तो इससे भी ये बात प्रूव होती है कि हाइड्रोस्फीयर कभी भी क्या है? इट इज मच लार्जर देन लिथोस्फीयर एज इन द टर्म्स ऑफ कंपैरिजन. अगर हम कंपैरिजन करें तो हाइड्रोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर के मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में बहुत वास्ट है. इट कंसिस्ट ऑफ नियर अबाउट 71% ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, hydrosphere, and the part of the lithosphere. Now let us study all these three components in detail. जो भी हम तीनों देखे, एयर, वाटर एंड लैंड, चलो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. As you can see here, a diagram I have drawn on blackboard. It show the different components of air. एयर का जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में इसमें एक्सप्रेस किया गया है. एज यू कैन सी हियर, नाइट्रोजन इन द एयर इट कंसिस्ट ऑफ 78%. कितना होता है? 78%, सबसे ज्यादा होता है. सेकेंड हाईएस्ट एयर के अंदर होता है ऑक्सीजन एंड दैट इज अबाउट 21%. उसके बाद से आर्गन गैसेस होती है, ये होता है 0.9%. अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर होते हैं 0.7% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%. तो डियर स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी कम रहे उतना हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है? उतना हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन रहता है, हमें उतनी क्लीन एयर मिलती है. अगर ऑक्सीजन डिक्रीज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज हुआ तो इन फ्यूचर नो लिविंग थिंग्स कैन बी सर्वाइव. क्यों? क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर क्वांटिटी अगर बढ़ेगी एयर के मिक्सर में तो क्या होगा? ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, और अगर ऑक्सीजन डिक्रीज होगा तो नो लिविंग थिंग्स कैन बी सर्वाइव, कोई जिंदा नहीं रह सकता है. ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को अगर हम एक में मिला देते हैं तो वी कैन से दैट एयर इज अ मिक्सर ऑफ गैसेस. एयर क्या है? बहुत सारे गैसेस का मिक्सर है और इसमें भी सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन, दैट इज अबाउट 78%. नाउ चलो हम अपने थियोरेटिकल पार्ट को देखते हैं. द एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन नाइट्रोजन. एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है. उसके बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं और 6 इनर्ट गैसेस भी होते हैं. इसके अलावा कौन कौन से गैसेस? द फर्स्ट वन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. ये सारे मिला के इसे 6 इनर्ट गैसेस होते हैं. उसके बाद से the troposphere contain about 80% of the total gases in the air, and while this proportion is 90% in the stratosphere. आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो कि जैसे अर्थ है, अर्थ सरफेस के ऊपर हम जब जाएंगे स्पेस की तरफ तो सबसे पहले जो आएगा ट्रोपोस्फियर, उसमें 80% गैसेस होते हैं एटमॉस्फेयर के.
अगर हम उसके ऊपर और जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फीयर आएगा, उसमें 19% गैसेस होते हैं। और हम जैसे उसके ऊपर जाएंगे तो मेसोस्फीयर, एनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर ये आएंगे। लेकिन हम जब स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर जाएंगे तो जो गैसेस होते हैं एयर के अंदर, बराबर एटमॉस्फेयर होता है, वो धीरे धीरे कम होते जाता है और डिक्रीज होते जाता है। और एक्सोस्फीयर के ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो यही मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के लिया है कि द स्ट्रेटोस्फीयर कंटेन अबाउट 80% ऑफ टोटल गैसेस इन द एयर एंड व्हाइल दिस प्रपोर्शन इज 19% इन द स्ट्रेटोस्फीयर. Further, in the mesosphere and ionosphere, the mass of the gases goes on decreasing. अगर आप इसके ऊपर जाओगे तो आप गैसेस क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे. And gases are not found in the exosphere and beyond. अगर आप एक्सोस्फीयर के ऊपर जाओगे और इसके और बियॉन्ड में जाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल गैसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा. तो dear student, this was all about the air. Now in the next part we will learn the uses of different gases in the air. So for today that much is enough. Okay, so see you later in the next video. Thank you, bye.